certain terms in statistics. And everyone knows if we want to clear CPT Max, we need to have a good hold on stats portion which contains 25 marks. 25 marks is maths, 25 marks is stats. So specifically for non-math student, statistics portion is very important. So you need to be very calm and composed when you are solving the sums of statistics, because अगर एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का आप गलत कर रहे हैं, आपका एक नंबर तो जा ही रहा है, साथ में -0.25 भी हो रहा है. तो we need to focus more on the statistics portion which will save our 6 months. Okay? तो अब इसमें को जानना है, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, सिंपल सा बात समझ लो. ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है ना, कॉपी, एक सिंपल सा वर्ड में समझाएंगे स्टैटिस्टिक्स को. इट इज कॉपी, CAPI. देखो इन सिंपल वर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स इज कॉपी, CAPI. आप लोग लिख रहे हैं कॉपी में, बट लेट अस स्पीक इन सम डिफरेंट लैंग्वेज. कॉपी. सर व्हाट इज दिस कॉपी? C stands for collection, C stands for collection, C stands for collection, A stands for analysis, A stands for analysis, P stands for presentation, P stands for presentation, and I stands for interpretation, and I stands for interpretation, and I stands for interpretation. But the ranking will be different. First we collect, then we present, third we do the analysis, and fourth we do the interpretation. Ranking will be like this. पहले कलेक्ट करते हैं डेटा को, फिर प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करने के बाद we do the analysis, and last of all we do the interpretation. Okay, so what is statistics? Statistics is copy. Now statistics is defined in two senses, singular sense and plural sense. Statistics has been defined in two senses, singular sense and plural sense. Singular sense and plural sense. And the word statistics has been derived from 4 different terms. The word statistics has been derived from 4 different terms, that is the Latin word status, the German word statistic, the French word statistic, QE होगा लास्ट में, and the Italian word statista, and the Italian word statista. And the meaning of all the words is political state, and the meaning of all the words is political state, and the meaning of all the words is political state, and the meaning of all the words is political state. तो statistics has been derived, MCQ में आने का हाई चांसेस है, इस बार बहुत बार से नहीं आया है. Statistics has been derived from the Latin word status, German word statistic, last में TIK होना चाहिए, French word statistic, TIQUE, and Italian word statista, and Italian word statista. Now let us remember this particular thing for the rest of our life by writing a single punch line. Write down the punch line of remembering this. मेट्रो में जा रहे हो, कोई दोस्त मिल गया, तुमसे पूछ रहा है, अरे पटवारी का रिवीजन क्लास करके आया क्या? हाँ. पूछेगा क्या सीखा? तो बोला ये सीखा. लिखो क्या तुम्हारा औकात है, लिखो क्या तुम्हारा औकात है, क्या तुम्हारा औकात है जर्मनी का फुटबॉल मैच, क्या तुम्हारा औकात है जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए, क्या तुम्हारा औकात है जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यू. क्लास खत्म होने का चले जाना, पार्टशीट में है. फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यू, फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यू में इटालियन डिश पास्ता खाने का. क्या तुम्हारा औकात है जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यू
में इटालियन डिश पास्ता खाने का। जो सपाट, दिस लाइन वाज मेंट फॉर रिमेंबरिंग दिस फोर थिंग्स। औकात, स्टेटस। औकात का मतलब क्या होता है? स्टेटस। तो लैटिन वर्ड स्टेटस। अगेन वी कम जर्मनी, फुटबॉल। फुटबॉल में होता है किक, किक से आया स्टैटिस्टिक, लास्ट में वो आई के होना चाहिए, इसीलिए किक है ना, लास्ट में दैट शुड बी आई के। फुटबॉल से होता है किक। फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यू, अंडरलाइन द वर्ड बारबेक्यू, क्यू यू ई, स्टैटिस्टिक है, फ्रेंच से याद आएगा, लास्ट में क्यू यू ई है। और पास्ता से किसको याद नहीं आएगा? स्टैटिस्टा। इटालियन डिश है ना पास्ता, तो इटालियन से आ गया स्टैटिस्टा। तो अब जिंदगी भर याद रहेगा हमको। लैटिन वर्ड स्टेटस, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, किक है सर लास्ट में आई के, फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यू, क्यू यू ई, एंड इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। नाउ कमिंग ऑन टू डेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? डेटा जनरली पता है दो टाइप का ही होता है। जनरली वी स्पीक डेटा आर ऑफ टू टाइप्स। सर क्या होता है? क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा? मैं लड़का हूं, क्वालिटेटिव। इस क्लास में 50 लड़के बैठे हैं, क्वांटिटेटिव। When we assign a number to a characteristic, it becomes what? Quantitative. Generally data दो ही टाइप का होता है, qualitative and quantitative. Statistics, मैं लड़का हूं लेकिन क्या करेगा? Statistics को मेरे लड़के होने से क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं। Statistics मतलब होता है when you give a particular number to characteristic. That means statistic deals with only quantitative data. ये लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद ओनली क्वांटिटेटिव डेटा, ये लिमिटेशन है। तो वी नीड टू मार्क दिस। देखो डेटा आर जनरली आउट ऑफ टू टाइप्स। डेटा आर जनरली आउट ऑफ टू टाइप्स। डेटा आर जनरली आउट ऑफ टू टाइप्स। डेटा आर जनरली आउट ऑफ टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब हो गया कैरेक्टरिस्टिक। क्वालिटेटिव का मतलब हो गया कैरेक्टरिस्टिक। And when you assign a number to a characteristic, it becomes quantitative. And when you assign a number to characteristic, it becomes a quantitative. We can say, for example, gender of a person, nationality, these are all qualitative data. And number of men, number of female, number of male, okay? We can say that number of students of first year, second year, third year, these are all what? Quantitative data. Clear? Now, next moving on to collection of data. Collection of data can be done if I ask this person कि बाबू तुम्हारा नाम क्या है? He will say me his name. I am collecting his name for the first time. That is primary data. और अगर मैं बगल वाले से पूछ रहा हूँ कि बताए इसका नाम क्या है, तो बगल वाला क्या करेगा? पहले प्राइमरी कलेक्ट करेगा, वो पूछेगा इसका नाम, and then he will transfer to me. That means that is derived data. गूगल में मारते हो मैथ्स का मतलब बड़ा सारा डेफिनेशन आता है, तो गूगल क्या पैदा थोड़ी किया है? गूगल ने कलेक्ट किया है, गूगल ने कलेक्ट किया है, विकिपीडिया ने कलेक्ट किया है, एंड वी आर यूजिंग दैट डेटा. इट मींस व्हाट? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा का जो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है वो क्या है? डेटा व्हिच वी पर्सनली कलेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इज प्राइमरी डेटा, एंड डिराइव्ड डेटा का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी डेटा. येलो पेज बोल के बुक आता है एक तो, ठीक है, टेलीफोन डायरेक्टरी, गवर्नमेंट सोर्सेज, दिस आर ऑल व्हाट? सेकेंडरी डेटा. बट मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं, मैं टेलीफोन पे इंटरव्यू ले रहा हूं, लोग जब रेल में लटक रहे होते हैं तो मैं आज तक से रिपोर्टर, कैसा लग रहा है आपको लटक के? दिस आर व्हाट? प्राइमरी डेटा. दिस आर व्हाट? प्राइमरी डेटा. तो गिव द हेडिंग कलेक्शन ऑफ डेटा. दो टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी. प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मतलब होता है ओरिजिनल डेटा, सेकेंडरी होता है डिराइव्ड डेटा. जस्ट राइट रनिंग नोट्स. कलेक्शन ऑफ डेटा दो टाइप्स हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी. प्राइमरी मतलब हो गया ओरिजिनल डेटा, सेकेंडरी का मतलब हो गया, सेकेंडरी का मतलब हो गया डिराइव्ड डेटा. सेकेंडरी का मतलब हो गया डिराइव्ड डेटा, ठीक है. अब प्राइमरी में आप क्या कर सकते हो? यू कैन डू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. राइट डाउन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट मेथड. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट मेथड. मेल्ड क्वेश्चनियर, मेल्ड क्वेश्चनियर, मेल्ड क्वेश्चनियर covers the widest area. Mailed questionnaire method covers the widest area. Mailed questionnaire method covers the widest area. Mailed questionnaire method covers the widest area. But at the same time,
but at the same time maximum number of non-response, but at the same time maximum number of non-response is also from it. Quickest is telephone. Quickest is telephone. Quickest is telephone. एक्सीडेंट के केस में इनडायरेक्ट इंटरव्यू, एक्सीडेंट के केस में इनडायरेक्ट इंटरव्यू एंड नेचुरल कैलामिटी के केस में डायरेक्ट. एक्सीडेंट के केस में इनडायरेक्ट एंड नेचुरल कैलामिटी के केस में it is direct. Now after collecting the data we need to present them. Heading presentation. तीन टाइप से कर सकते हैं. Presentation can be done 3 types. 3 एरो निकाल लो. Presentation can be done 3 types. 3 एरो निकाल लो. Presentation can be done 3 types से 3 एरो निकाल लो. एक तुम्हारा होता है टेक्सचुअल, एक होता है तुम्हारा टैबुलर, एक तुम्हारा होता है डायग्रामेटिक. दिस इज बोरिंग, दिस इज बेस्ट. क्योंकि ये रोज एंड कॉलम्स में होता है, कंपेयर करने में इजी होता है. एक होता है ना भाई देखने में हेवी लग रहा है, चित्र मतलब पिक्चर प्रेजेंटेशन देखने में अच्छा लगता है ना, तो इट इज मोस्ट अट्रैक्टिव एंड देन जो हिडन जो ट्रेंड होता है ना वो डायग्राम से ही पता चलता है. हिडन ट्रेंड इज फ्रॉम डायग्रामेटिक. अब टैबुलर का मतलब क्या हो गया, टेबल बनाना पड़ेगा. तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है. अ टेबल हैज 4 पार्ट्स. और कॉमन क्वेश्चन क्या पूछता है, रो हेडिंग को स्टब बोला जाता है. रो हेडिंग को वी कॉल स्टब. कॉलम हेडिंग को वी कॉल कैप्शन. कॉलम का जो हेडिंग होता है वी कॉल कैप्शन. फेसबुक वाला कैप्शन नहीं है, ये आपका कैप्शन बोलते हैं इसको, ठीक है. कॉलम हेडिंग को वी कॉल कैप्शन. ये जितना भी टाइटल वगैरह होता है, टेबल नंबर होता है, सब बॉक्स हेड में आता है. बॉक्स हेड इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ टेबल व्हिच कंटेन्स व्हाट, टेबल नंबर, नेम ऑफ द टेबल एक्सेट्रा. लिखो बॉक्स हेड इज द अपर पार्ट ऑफ द टेबल. Box head is the upper part of the table. Which contains table number, title, etc. तो 4 पार्ट क्या हो गया, बॉक्स हेड, स्टब, कैप्शन, कॉलम एंड बॉडी. देखो बॉडी ऑफ द टेबल. बॉडी में खाली न्यूमेरिकल फैक्ट्स रहेगा. अब 2 टाइप का नोट होता है, एक होता है फुट नोट, एक होता है सोर्स नोट. फुट नोट इज फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एब्रिविएशन यूज्ड इन टेबल. Footnote is for the better understanding, to clear the ambiguity. Footnote is for the better understanding and to clear the ambiguity. Source note is for the area from where you have taken the data. Source note is from the area from where you have taken the data.
next heading will be some important terms. Some important terms. Some important terms. सबसे पहले वेरिएबल जिसको हम लोग x मानते हैं, सबसे पहले वेरिएबल जिसको हम लोग x मानते हैं, ये दो टाइप का होता है. एक डिस्क्रीट होता है जो खाली इंटीजर्स देता है, होल नंबर्स देता है, और एक तुम्हारा कंटीन्यूअस होता है. इसका एग्जांपल ले सकते हैं नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स. कभी सुना है आधा एक्सीडेंट हुआ है, किसी का एक आधा पांव कट गया और पूरा होते होते बच गया, आधा ही हुआ है. एक्सीडेंट एक हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है. हम आधा एक्सीडेंट नहीं सुने, आधा एक्सीडेंट नहीं होता है. सर कितू सा गलती हो गया, 0.1 गलती नहीं, गलती मतलब गलती, एक गलती, दो गलती, तो नंबर ऑफ मिस्टेक्स. डायरेक्टली पूछता है ऐसा क्वेश्चन. अच्छा, अभी हम इससे पूछे तुम्हारा उम्र क्या है, ये बोल रहे हैं हमारा उम्र 20 साल है. हमसे कोई पूछेगा हमारा उम्र क्या है, हम बोलेंगे आई एम 24 years 2 months 2 days 13 hours and few seconds. जैसे ही ये बात बोले अगले सेकंड में फिर से एक सेकंड बढ़ जाएगा. तो when we talk about age, it is what? Continuous. Marks by 24.75 आ सकता है, 24.5 आ सकता है. Marks is a continuous. Income of a person. Next comes the biggest letter of your life, the word F. Frequency. It is frequency. It is frequency. That is